Bismillahirrahmanirrahim. I'm Falak Batul and I'm demonstrating biology practicals. Students, as per syllabus, our next practical is investigation of effects of indole acetic acid on growth of oat coleoptile. As we know, plants are immobile and devoid of a nervous system. Plant hormones promote the growth of plant. These hormones act as signaling molecules produced within plant that occurs in extremely low concentrations. These hormones not only promote the growth of the plant but also determine the formation of flower, leaves, buds, shoots, and development and ripening of fruits. Altogether, we can say all physiological processes are under the control of these hormones. Let's move to the board. Plant hormones, they may be growth promoters and growth inhibitors. Plant hormones, which are growth promoters, include auxins, gibberellins, and cytokinins, while in growth inhibitors are ethylene and abscisic acid. In growth promoters, most important is auxin. They are produced in meristematic tissues of leaves, buds, fruits, seeds, and tips of coleoptile. You may heard this word before, coleoptile. Coleoptile is a hollow, cylindrical, protective sheath that surrounds the embryonic leaves of developing seedling. When the length of tip reaches a 5 to 8 centimeter, it stops to grow. As I have already told you what is coleoptile, वो क्या apparatus होगा जो कि हमें चाहिए इस practical को further proceed करने के लिए. Please have a look. Apparatus include germinating oat seedling. हम ओट सीड्स लेंगे, इन्हें जर्मिनेट कराएंगे. हम इन्हें मजीद देखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से जर्मिनेट करवा सकते हैं. 6 टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब रैक, बीकर्स, 6 पैटी डिशेस, पाइपेट्स, इंक्यूबेटर. मजीद देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर. फिल्टर पेपर, स्टॉक इंडोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन. मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊं. इंडोल एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम ऑक्सिन है और हम इसे एब्रीवेट करते हैं IAA के साथ. ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होता, सो हम इसे एथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करके इसका स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे. मजीद देखेंगे जब हम अपने स्टॉक्स को प्रिपेयर करेंगे. डिस्टिल वाटर एंड ब्लेडेड कटर. कोलियोप्टाइल्स जब ग्रो कर जाएंगी और हमें उनका जितना साइज रिक्वायर होगा, हम उसके अकॉर्डिंगली उन्हें कट कर लेंगे. देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ जर्मिनेटिंग ओट. इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लेस अबाउट 100 grains in 1000 ml water. Retain them overnight. Afterwards, place soak seeds on damp filter paper and cover with aluminium foil. Light also affects the growth. Therefore, cutting and transferring of coleoptile seedling must be carried out under the minimum amount of light. Place the setup in dark for 5 days. 5 days के बाद हम इन कोलियोप्टाइल्स को निकाल लेंगे और इन्हें कट करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि मुमकिन है कि इन 100 ग्रेन्स में से हमें 100 कोलियोप्टाइल्स ना मिलें. कुछ सीड्स को जर्मिनेट होने में 5 या 6 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है. सो मे बी हम 60 to 70 कोलियोप्टाइल्स ही हासिल कर सकें. देन कम्स सुक्रोज सोल्यूशन और ये होगा 2%. हम इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्ट करेगा एज अ एनर्जी सोर्स. 2 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर. तो ये 2% सुक्रोज सोल्यूशन बन जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक इंडोल एसिटिक एसिड सोल्यूशन, और ये 1000 पार्ट पर मिलियन होगा. मतलब ये हुआ
कि कोई 1 ग्राम चीज 1000 ml पानी के अंदर डिसॉल्व कर दी गई है और इसे प्रिपेयर किया जाएगा. So what we have to do? 1 gram indole acetic acid, as I have already told you, ये water soluble नहीं है, so हम इसे dissolve करेंगे in 2 ml of ethyl alcohol. Dilute this solution to 900 ml with distilled water. Warm at 80 degrees Celsius for 5 minutes and make this solution up to 1000 ml with distilled water. So final concentration 1000 पार्ट्स पर मिलियन होगी. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी. बेसिकली द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड ऑन द ग्रोथ ऑफ ओट कोलियोपेटाइल. जब नेचुरली ऑक्सिन कोलियोपेटाइल टिप्स के अंदर प्रोड्यूस होता है और ऑलमोस्ट अगर हमारे पास ये एक कोलियोपेटाइल टिप है तो इसके इस 3 मिलीमीटर के अंदर नेचुरली ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है. हम यहाँ पे जिन कोलियोपेटाइल टिप्स को रेडी करेंगे उनके इन फर्स्ट 3 मिलीमीटर के पार्ट को कट कर देंगे ताकि नेचुरली प्रोड्यूस होने वाला ऑक्सिन खत्म हो जाए और हम आर्टिफिशियली इसे ऑक्सिन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ ट्रीट कर सकें. प्लांट हार्मोन्स का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हर चीज की एक रेंज होती है. बॉडी के अंदर अगर किसी मिनरल की, किसी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम या ज्यादा हो जाए तो तब भी कोई मलफंक्शन हो जाती है. इसी तरह से हमें यह देखना है कि जब हम आर्टिफिशियली इस इंडोल एसिटिक एसिड को या ऑक्सिन को इन कोलियोपेटाइल टिप्स को प्रोवाइड करेंगे तो यहां पर हमें वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है जो कि सुटेबल होगी और वो बेस्ट ग्रोथ शो करेगी इन ओट कोलियोपेटाइल में. इसी पर्पस के लिए हमने आर्टिफिशियली इन स्टॉक सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना है. और क्योंकि अब इन कोलियोपेटाइल्स को हम कट कर लेंगे और इन्हें फर्दर यूज करेंगे इनके ग्रो होने के बाद, इसीलिए एज अ एनर्जी सोर्स हमें ये सुक्रोज सॉल्यूशन देना होगा. और इंडोल एसिटिक एसिड के इफेक्ट को देखने के लिए हमें आर्टिफिशियली इसके स्टॉक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना होगा और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस अप्लाई करके कोलियोपेटाइल टिप्स पर देखना होगा. यहां तक हमने बात की हम किस तरह से अपने स्टॉक सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करेंगे. मजीद देखते हैं इन्हें हम किस तरह से फर्दर प्रोसीड करेंगे. सो प्लीज लेट्स हैव अ लुक ऑन अ नेक्स्ट बोर्ड. All right, students, we will take 6 test tubes and 6 petri dishes and label them with A, B, C, D, E and F. Similarly, इनकी petri dishes को भी small letters के साथ हम label कर लेंगे. Now it's time to add stock solutions. We will add firstly sucrose solution. We will take 18 ml of sucrose solution in fresh pipette and add it in test tube A. Similarly, 18 ml sucrose solution in test tube B, 18 ml sucrose solution in test tube C, D, E and F. अब हम इसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे. इंडोल एसिटिक एसिड की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1000 पार्ट्स पर मिलियन थी. यूज फ्रेश पाइपेट्स ईच टाइम. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस बदलेंगी सो इसलिए हमें हर बार एक फ्रेश पाइपेट को इस्तेमाल करना होगा. इंडोल एसिटिक एसिड की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1000 पार्ट पर मिलियन थी. हम एक फ्रेश पाइपेट लेंगे और उसमें 2 ml इंडोल एसिटिक एसिड को फिल करेंगे और उसे ऐड कर देंगे अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में. सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अब जो मिक्सचर बनेगा हमारे पास वो 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन और 2 ml इंडोल एसिटिक एसिड का होगा. इसे हम अच्छे से शेक कर देंगे, मिक्स कर देंगे. आफ्टरवर्ड्स हम फिर एक फ्रेश पाइपेट लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब ए से 2 ml शिफ्ट कर देंगे इन टेस्ट ट्यूब बी. यहां पे मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशंस का जिक्र करना चाहूंगी. जब हमारे पास इंडोल एसिटिक एसिड का एक पूरा स्टॉक था तो उस वक्त कंसंट्रेशन
1000 पार्ट्स पर मिलियन थी, लेकिन जब हमने स्टॉक से 2 ml इंडोल एसिटिक एसिड अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब या टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ऐड किया तो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. दैट वुड बी 100 पार्ट पर मिलियन. सिमिलरली टेस्ट ट्यूब ए से 2 ml लेंगे और उसे ऐड कर देंगे इन टेस्ट ट्यूब बी. सेम मिक्सचर में वही दो चीजें हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन, लेकिन यहां पर मजीद कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, चेंज होगी और ये 10 पार्ट पर मिलियन हो जाएगी. फिर से एक फ्रेश पाइपेट लेंगे 2 ml अपने टेस्ट ट्यूब बी से और उसे ऐड करेंगे अपने टेस्ट ट्यूब सी में. एक बार फिर इंडोल एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10 से 1 पार्ट पर मिलियन हो गई. मैं इसे इस तरह से एग्जाम्पलीफाई करूंगी और ये एग्जाम्पल बहुत ही मजेदार है कि आप एक जग में अपनी मर्जी का कोई भी शरबत या जूस लीजिए. आपके पास 6 ग्लासेस होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इन 6 टेस्ट ट्यूब्स को. इन 6 ग्लासेस को हमने फिल कर लिया है हाफ विद द वाटर. अब हम क्या करेंगे, अपने जग से थोड़ा सा जूस लेंगे. चलें लेट्स सपोज कि वो 2 ml ही था और मैंने अपने पहले ग्लास के अंदर डाल दिया. तो क्या होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी आधा पानी है और 2 ml आप उसके अंदर एक जूस ऐड कर रहे हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. सिमिलरली अब मैं इस ग्लास 1 या टेस्ट ट्यूब ए के मिक्सचर को मिक्स करूंगी, एक बार उसे थोरोली शेक करूंगी और एक फ्रेश पाइपेट से या अपने पहले ग्लास से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में जूस अपने दूसरे ग्लास में डाल दूंगी. तो क्या होगा, मजीद यहां पर उस जूस की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है. सेकंड वाले से थोड़ा सा लूंगी और उसे थर्ड ग्लास में डालूंगी, मजीद कम होगी. थर्ड से थोड़ा सा लूंगी, उसे मिक्स कर दूंगी और फोर्थ वाले में डाल दूंगी, मजीद कम हो जाएगी. और आखिरकार टेस्ट ट्यूब ई तक आते आते उसका रंग और जायका बिल्कुल बदल चुका होगा. शायद ना होने के बराबर उसमें जायका हो और हल्का फुल्का रंग शायद हमें उसका नजर आ रहा हो. यही कॉन्सेंट्रेशंस के साथ हो रहा है जब हम शिफ्ट कर रहे हैं हर बार एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में. टेस्ट ट्यूब एफ, इसके अंदर 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन तो है, लेकिन हम इसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड को ऐड नहीं कर रहे, बल्कि हम यहां पर 2 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे. इसे हम एज अ कंट्रोल रन करेंगे ताकि हम कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब्स को कंपेयर कर सकें और अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकें. आफ्टरवर्ड्स इन टेस्ट ट्यूब्स में बना हुआ मिक्सचर उन्हीं की ही कंसर्निंग पैटर डिशेस के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे. एक फ्रेश पाइपेट लेंगे, यूज फ्रेश पाइपेट ईच टाइम. टेस्ट ट्यूब ए से मिक्सचर को पैटर डिश ए में ट्रांसफर कर देंगे, बी से मिक्सचर को बी पैटर डिश में, सी वाले टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को पैटर डिश सी में, डी से सॉल्यूशन को डी पैटर डिश में, ई से ई पैटर डिश में और टेस्ट ट्यूब एफ से शिफ्ट करेंगे पैटर डिश एफ में. यहां तक हमने इन मिक्सचर्स को पैटर डिशेस में शिफ्ट कर दिया है. देन कम्स कि हम अपनी कोलियोपेटाइल टिप्स, जिन्हें हमने और सीड्स को इस्तेमाल करते हुए जर्मिनेट कराया और उसके बाद उन्हें प्रॉपरली कट किया, उन्हें प्रिपेयर किया, अब हम उन्हें यहां पे शिफ्ट करने वाले हैं. बोर्ड पर मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, प्लीज हैव अ लुक. एक ओट सीड है, लीफ आप देख सकते हैं और बाहर एक कोलियोपेटाइल प्रोटेक्टिव शीट है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स के बाहर होती है. इसकी 3 मिलीमीटर के टिप पर नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब हम एक सेटअप आर्टिफिशियली रन कर रहे हैं तो हमें इस नेचुरल सोर्स को भी खत्म करना होगा. फॉर दिस पर्पस वी विल कट द टिप ऑफ 3 मिलीमीटर और बाकी की 10 मिलीमीटर की कोलियोपेटाइल्स को हम अपने पास
रखेंगे और इन्हें आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। पर्पस यही था कि जिस टिप के अंदर नेचुरली ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम यहां पर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन के स्टॉक सोल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। 10 mm की या 10 मिलीमीटर की हमें 60 कोलियोपोटाइल टिप्स चाहिए होंगी, क्योंकि हमारे पास 6 पैटर डिशेस हैं। हम हर एक पैटर डिश के अंदर 10 मिलीमीटर की 10 कोलियोपोटाइल टिप्स को ऐड करेंगे। पैटर डिशेस के अंदर हम 10 कोलियोपोटाइल टिप्स डालेंगे और साथ ही जो मिक्सचर हमारे पास बना था इंडोल एसिटिक एसिड का और 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन का, उसे अच्छे से थोरोली मिक्स करने के बाद इन पैटर डिशेस के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स हम इन पर इनके लिड लगाएंगे, एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे और इन्हें 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 डेज के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं? व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशंस? क्या ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होंगी? हम जब इंक्यूबेटर से आफ्टर 5 डेज इन पैटर डिशेस को निकालेंगे तो प्रॉपरली हम इन्हें मेजर करेंगे इनकी लेंथ किस में इंक्रीज आया है और किस में डिक्रीज आया है, या जो एवरेज लेंथ होगी उसे हम अपने पास नोट करेंगे, क्योंकि जब हमने इन कोलियोपोटाइल टिप्स को इन पैटर डिशेस में रखा था तो हर एक टिप की लेंथ 10 मिलीमीटर थी। ऑब्जर्वेशंस: A maximum increase in average length of coleoptile take place in patter dish B and C with 15 mm or 15 millimeter. You can clearly see here, patter dish B में मेजर करने के बाद जो कोलियोपोटाइल की लेंथ है वो 10 से 15 मिलीमीटर हो गई है। सिमिलरली इन C पैटर डिश ये 15 मिलीमीटर हो गई है। But lesser increase in पैटर डिश A, D and E. आप देख सकते हैं इन पैटर डिश A ये 10 से 12 मिलीमीटर हुई है, इन D ये 10 से 11 मिलीमीटर हुई है, इन E ये 10 से 11 मिलीमीटर है। लेकिन पैटर डिश F में कोई ग्रोथ या कोई इंक्रीज हमें नजर नहीं आया। क्यों? बहुत आसान सा जवाब है, क्योंकि इसके अंदर हमने इंडोल एसिटिक एसिड को ऐड ही नहीं किया था। इसके अंदर सिर्फ 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन और 2 ml डिस्टिल वाटर था और हमने इसे एज अ कंट्रोल रन किया था। अपने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम अपने रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोलियोपोटाइल अकर एट 1 to 10 ppm और पार्ट पर मिलियन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। यहां हमें एक रेंज मिली जो कि 1 से 10 पार्ट पर मिलियन होगी। अगर इससे ज्यादा या कम होगा तो दोनों ही सूरत में ये इन कोलियोपोटाइल की ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा। दिस इज हाउ आई डेमोन्स्ट्रेट यू अबाउट दिस प्रैक्टिकल। अब हम अपनी लैब में चलते हैं और इसे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम अपनी लैब में हैं और वो तमाम ऑपरेटर्स जो कि रिक्वायर्ड था यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब रैक में 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन्हें लेबल किया गया है A, B, C, D, E and F। इसी तरह से इन्हीं की ही कंसर्निंग हमारे पास 6 पैटर डिशेस हैं और वो भी लेबल हैं A to F। सबसे पहले हम इनके अंदर ऐड करेंगे 2% सुक्रोज सोल्यूशन जो कि 18 ml होगा। एक फ्रेश पाइपेट की हेल्प से इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में हम ऑलरेडी 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन को ऐड कर चुके हैं। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 18 ml ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन इज ऑलरेडी एडेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने स्टॉक सोल्यूशन से जो कि इंडोल एसिटिक एसिड का है और इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1000 पार्ट पर मिलियन है। एक फ्रेश पाइपेट की हेल्प से हम 2 ml इंडोल एसिटिक एसिड अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जो कि टेस्ट ट्यूब A है।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, अपनी पहली टेस्ट ट्यूब में 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन और 2 ml इंडोल एसिटिक एसिड है। हम इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद एक फ्रेश पाइपेट लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब ए से 2 ml सोल्यूशन हम ऐड करेंगे इस टेस्ट ट्यूब बी में। मैंने एक फ्रेश पाइपेट ली, उसमें 2 ml सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए से लिया और उसे बी में डाल दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर से एक फ्रेश पाइपेट लें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंडोल एसिटिक एसिड की बदल रही है। टेस्ट ट्यूब बी से हम 2 ml लेंगे और इसे ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब सी में। फिर से शेक करेंगे। अगेन एक फ्रेश पाइपेट, टू ml और ऐड कर दिया डी में। मिक्स करेंगे। फ्रेश पाइपेट लेंगे, डी से 2 ml ई में शिफ्ट करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टेस्ट ट्यूब एफ, जो कि हमारी कंट्रोल टेस्ट ट्यूब है, हमने इसे एज अ कंट्रोल रन किया है, इसलिए इसके अंदर 18 ml सुक्रोज सोल्यूशन तो है, लेकिन हम इसके अंदर इंडोल एसिटिक एसिड नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी जगह पर 2 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। और इसे भी मिक्स कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इन पैटर डिशेस में ऑलरेडी कोलिपेटाइल टिप्स मौजूद हैं। आप यहां इस कोलिपेटाइल टिप को देख सकते हैं और इनमें से हर एक की लेंथ 10 मिलीमीटर है और ये 10 इन नंबर है। हर पैटर डिश के अंदर 10 कोलिपेटाइल टिप्स रखी गई हैं और इनका साइज भी 10 मिलीमीटर है। हम इन टेस्ट ट्यूब से सॉल्यूशंस को इनकी कंसर्निंग पैटर डिशेस में ऐड करेंगे। इस पहली पैटर डिश में टेस्ट ट्यूब ए से मैं सॉल्यूशन ऐड करूंगी। टेस्ट ट्यूब बी से पैटर डिश बी में, सी से
पेट्री डिश सी में, डी से पेट्री डिश डी में, ई टेस्ट ट्यूब से पेट्री डिश ई में, और एफ जो कि कंट्रोल टेस्ट ट्यूब है इस पेट्री डिश में भी ऐड कर दिया है। इनके ऊपर इनके लिड्स लगाएंगे। और अब इनके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को रैप करेंगे और इन्हें इंक्यूबेट कर देंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 days। Similarly, with the Petri dish B, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर इंक्यूबेशन हम फिर से रीमेजर करेंगे इन कोलिब्यूटाइल की लेंथ को और अपने रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। After incubation of 3 days, Petri dishes are here. As you can see, Petri dish A 12 millimeter, जैसा कि हमने इन कोलिब्यूटाइल टिप्स को इंक्यूबेट किया और उसके बाद इन्हें रीमेजर किया। Petri dish B 15 millimeter, Petri dish C 15 millimeter, Petri dish D 11 millimeter, Petri dish E 11 millimeter and Petri dish F 10 millimeter। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसके अंदर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड ऐड नहीं था। सो मैक्सिमम ग्रोथ जिन पेट्री डिशेस में आई वो हमारे पास पेट्री डिश बी और सी है विद 15 millimeter, while the lesser rate of growth is seen in Petri dish A, Petri dish D and Petri dish E. This is how we concluded the result और हमारा आज का ये प्रैक्टिकल यहाँ खत्म हुआ।